Shall we start? Ready, all of you? Okay, so 6.1 we have already done. Explain the following terms. उसमें 6.1 what was the question? Feudal lords. Have you written the answer? Have you explained the term feudal lords? Okay. Now your question number 6.2. 6.2 is Johar. Jauhar. Johar, and put a dash. You have to explain it, and I will be dictating. You will directly write in the class workbook. Mark नहीं करना है. Ready to write the answer? Okay, start writing. Raj women. Rajput R capital. Women WOMEN. Rajput women burnt themselves. Burnt. Past tense. Burnt themselves burnt themselves selves themselves alive if their husbands if their 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 husbands were defeated were defeated मतलब हार जाना were defeated or attained or attained martyrdom MARTYRDOM attain martyrdom meaning shahid ho jana, the people who die in the battles while fighting, or attain martyrdom in wars WARS in wars, full stop. This is called Johar. This is called Johar, J capital. Full stop, complete. I repeat the whole answer. Rajput women burnt themselves alive if their husbands were defeated or attained martyrdom in wars. Full stop. This is called Johar. Any doubts, anybody? Okay, so here we end our chapter 4. And from now onwards, we will not be having so much of writing work as we have already got the workbook. Okay, अभी questions हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Workbook में already questions है. We will have to write the answers. Okay, so now are you all ready for the new textbooks? All of you? Okay, chalo. So now, yes, Bhavya. No, only 6.1 and 6.2. Chapter 4 over. Okay. Now, listen very carefully. All of you are having the textbooks now. All the students, जिसके पास sorry. So except Jessica, all of you are having the textbook. I want all of you to take out the index of your textbook. पहले तो index निकालो. Okay, Rajya Guru, open the textbook, beta. Okay, now how many chapters are there in total? 19. Okay, now out of these 19 chapters, chapter 1 to 9 are of history. तो अगर आप चाहो तो 9 के बाद एक छोटी सी लाइन करो ताकि आपको पता चले कि हिस्ट्री खत्म और ज्योग्राफी स्टार्ट. Okay, then chapter number 10 to chapter number 14
is your geography. तो 14 के बाद वापस आप एक लाइन कर सकते हो. एंड चैप्टर नंबर 15 to 19 इज योर सिविक्स पोर्शन. समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? ओके, तो ये जो आपका इंडेक्स है जहां पर आपको ये सब लिखा है 1 2 3 4. लुक एट द स्क्रीन. दोषी धैर्य, जस्ट वेट फॉर अ मिनट. ओके, ओके, ये 9 तक हमारे हैं हिस्ट्री चैप्टर्स. फिर 10 11 12 13 14 ये होंगे हमारे क्या, ज्योग्राफी चैप्टर्स. एंड 15 to 19 सिविक्स. तो अभी हम लोग क्या फॉलो करने वाले हैं? फर्स्ट वी विल डू द चैप्टर ऑफ हिस्ट्री. वी विल स्टार्ट चैप्टर 1, देन 10, देन 15. ओके, मतलब फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, फर्स्ट ऑफ ज्योग्राफी, फर्स्ट ऑफ सिविक्स. ओके, फिर सेकेंड हम स्टार्ट करेंगे 2 11 16. तो वापस हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर आ जाएगा. समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? ओके, उसके बाद हम करेंगे 3 12 17 एंड ऑनवर्ड्स. समझ में आ गया क्या सीक्वेंस हम फॉलो करने वाले हैं? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में नहीं जाएंगे हम लोग. नहीं, वो भी मैं बता रही हूँ. ये समझ में आ गया सबको? ओके, नाउ सेकेंड थिंग, द 4 चैप्टर्स विच वी हैव ऑलरेडी डन. अगर आपको याद है तो चैप्टर 1 जो था 2 बिग स्टेट्स, दैट वाज फ्रॉम हिस्ट्री. याद आ रहा है? फिर चैप्टर 2 था मोशंस ऑफ द अर्थ विच वाज फ्रॉम ज्योग्राफी. याद आ रहा है? फिर चैप्टर 3 था स्टेट गवर्नमेंट विच वाज फ्रॉम सिविक्स. याद आ रहा है? देन चैप्टर 4 था राजपूत एज विच वाज अगेन फ्रॉम हिस्ट्री. ओके, सो वी हैव डन 1 चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, 1 चैप्टर ऑफ हिस्ट्री. तो अभी कौन सा चैप्टर आना चाहिए एज पर द लिस्ट? ज्योग्राफी. और हमारी न्यू टेक्स्ट बुक में ज्योग्राफी का कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 10. Okay, so today we are going to start with chapter 10. Chapter 1 is already done. देखो चैप्टर 1 है राजपूत एज. इस बुक में हम लर्न नहीं करने वाले, लेकिन पुरानी बुक में यही चैप्टर हमने लास्ट में किया था. ये जो चैप्टर 4 है वो है ना. समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? मैं आज इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि पूरे ईयर में हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको अभी से पता चल जाए, सो दैट ऑल द डाउट्स आर क्लियर, नो कंफ्यूजन विल बी देयर. ओके, अभी हमने जो डिसाइड किया, वेट लेट मी फिनिश. अभी हमने क्या डिसाइड किया? वी विल फॉलो द सीक्वेंस चैप्टर 1 10 15. ठीक है, उसके बाद हम करेंगे चैप्टर 2 11 16, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स. देन 3 12 17. तो इसमें से चैप्टर 1 इज ऑलरेडी डन. भले ओल्ड बुक में था पर यही चैप्टर था, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दिस चैप्टर. एम आई वेरी क्लियर? अब किसी को कोई डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आई विल आस्क यू वन बाय वन. चलो, जिसको भी डाउट है, दोषी धैर्य, यू आर रेजिंग द हैंड. बोलो बेटा. Okay, so now I hope that you have very much understood what will be our sequence as per the new syllabus, as per the new textbook, all of you. राइट, अभी सब क्लियर हो गया हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं. और वर्कबुक ऑलरेडी है, तो जैसे एक्सप्लेनेशन खत्म होगा हम लोग डायरेक्टली वर्कबुक में एक्सरसाइज करेंगे.
ठीक है। अब किसी को डाउट नहीं है तो वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर। और कौन सा चैप्टर करने वाले हैं हम लोग? चैप्टर 10। ओके, शैल वी स्टार्ट? ओके, चलो, टेल मी व्हाट इज द पेज नंबर? यस, 53। चलो, अभी मजा आएगा हार्ड कॉपी में पढ़ने में। यू ऑल शुड बी हैविंग अ पेंसिल इन योर हैंड। जो भी हार्ड वर्ड्स है मैं आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखवाऊंगी। Shall we start? Ready, all of you? Okay, so you should be on page 53 of your textbook. Earth's internal composition and landforms. Composition means how it is made up of. अर्थ जो है हमने देखा है कैसा दिखता है, बट इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंटरनल ऑफ द अर्थ, अंदर से अर्थ कैसा है, राइट? एंड लैंड फॉर्म। लैंड, यू नो व्हाट इज लैंड? नाउ जनरली क्या होता है कि लैंड इज नॉट ऑलवेज फ्लैट। अगर आप ट्रैवल करोगे तो आप देख सकते हो कि कभी कभी लैंड ऐसे स्ट्रेट होता है, बीच में एक माउंटेन आता है, फिर अगेन स्ट्रेट एक प्लेटू आ जाता है, फिर अगेन थोड़ा आगे जाओगे तो वैली आ जाएगी, बीच में रिवर आती है, फिर बहुत सारे फॉरेस्ट आते हैं। यस और नो? व्हेन वी ट्रैवल वी सी देयर आर सो मेनी डिफरेंट फीचर्स ऑफ द लैंड। तो इसको हम बोलते हैं लैंड फॉर्म्स। क्या बोलते हैं? तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं? इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड लैंड फॉर्म जो कि होते हैं बाहर ऑफ द अर्थ। समझ में आ रहा है? ओके, लेट अस स्टार्ट। Our earth is such a planet on which developed life is seen. You know that out of all the 8 planets, life is seen only on the earth. Like the other celestial bodies, the shape of the earth is also round. Celestial matlab the bodies which are in the space. Underline the word celestial. Celestial को underline करो and write the meaning of space. मतलब आपकी टेक्स्ट बुक में जो ये वर्ड लिखा है ना सेलेस्टियल, अभी क्लास वर्क की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? सेलेस्टियल है तो उसको अंडरलाइन करो और ये मीनिंग लिख लो। रिटर्न ऑल ऑफ यू। ओके, so like the other space bodies, the shape of the earth is round. It is constantly changing inside and outside. Inside and outside मतलब आज स्क्वायर है, कल रेक्टेंगल हो जाएगा, परसों ओवल हो जाएगा, not like that. The outer surface is changing, the land forms are changing. Okay, have you ever thought that what is there in the interior of the earth? What is earth made up of? कभी ऐसा सोचा है कि अर्थ के अंदर क्या होगा, किससे बना होगा, क्या होगा? अगर नहीं भी सोचा है तो हम इस चैप्टर में लर्न करने वाले हैं। ओके, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। The interior of the earth is made up of several layers arranged one on top of the other like an onion. You all have seen an onion? कभी अनियन कट नहीं भी किया है तो आज घर जाके मम्मी को बोलना कि मुझे अनियन कट करना है, और मम्मी बोलती है कि नहीं, नाइफ तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगी, तो मम्मी को बोलो कि आप कट करो, हम देखेंगे। तो जैसे आप अनियन को पील करोगे तो उसको उसमें एक के बाद एक लेयर निकलेगा। यू माइट हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग, यस और नो? यस, जैसे कैबेज में होता है, कैबेज में भी आपने देखा होगा देयर आर लेयर्स। ओके, तो अर्थ में भी देयर आर लेयर्स, लेकिन कैबेज या अनियन जैसे इतने सारे लेयर्स नहीं होते। ऑन द अर्थ वी हैव, इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ वी हैव only 3 layers. The layers, if you see the picture given to you, ये पेज में आपको दिख रहा है, अर्थ का एक पीस केक के तरह निकाल दिया है। अब केक कट करते हो तो अंदर से आपको दिखते हैं ना क्रीम का लेयर, ब्रेड का लेयर, तो ऐसे ही हमारे अर्थ का एक पीस कट कर दिया है। इन यू कैन सी दैट देयर आर 3 पीसेस, तो 3 कलर दिख रहे हैं, एक पर्पल है, एक लाइट ब्राउन है और एक रेड है।
तीन कलर्स दिख रहे हैं आपको? यस तो ऐसे ही अर्थ में ऑनियन की तरह लेयर्स है बट ओनली 3. लेट अस रीड इट अगेन. The interior of the earth is made up of several layers arranged one on top of the other like an onion. The uppermost layer of the earth is called crust. It is the thinnest of all the layers. It is about 35 kilometers on the continental mass. Continental mass meaning land. Underline the word, दोनों साथ में underline करो, continental mass. And write the meaning land. The main mineral constituents of the continental mass are silica and alumina. It is thus called Sial, S-I-A-L. Okay. The main mineral constituents. Underline the word constituents, meaning parts. Constituents को underline करके लिखो. Parts. Have you written? Have you written? Okay, now I will explain you actually that what this paragraph tells us. Now suppose if this is the surface of the earth. ठीक है, अब आप अर्थ को डिग करके अंदर जाओगे तो उसमें एक लेयर बनेगा यहाँ पर, फिर वापस उसको भी डिग करके अंदर जाओ तो यहाँ पर बनेगा थर्ड लेयर. Okay, so this is how earth looks like. So the first layer is known as the crust. Okay, उसके बाद है मेंटल और उसके बाद है कोर, लेकिन वो अभी हम लर्न नहीं करेंगे. Right now we are interested only in the first layer. समझ में आ रहा है? All of you? Okay, so if we go inside the earth, ये सरफेस जहां पर हम लोग रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग रहते हैं, इसके नीचे अगर आप डिग करके जाओगे तो ये फर्स्ट लेयर जो कि बहुत ही पतला है, फिर उसके बाद जो दूसरा लेयर है मेंटल वो थोड़ा बड़ा है और कोर तो उससे भी बड़ा है. मतलब ये लेयर सिर्फ इतना है, ये इतना बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है. एंड अगर उसको इसी शेप्स को हम लोग पूरा करें, देखो ये अर्थ का सरफेस, ये उसका फर्स्ट लेयर, ये उसका सेकेंड लेयर, थोड़ा ब्यूटीफुल ड्राइंग है, और ये थर्ड लेयर. समझ में आ रहा है? और एक्चुअली और एक्चुअली ये डिस्टेंस है, ये इतना ही डिस्टेंस यहाँ पर भी है, लेकिन थोड़ा ड्राइंग आगे पीछे, ये इतना ही डिस्टेंस यहाँ पर भी है. ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर फर्स्ट लेयर इज नोन एज क्रस्ट. और वो क्रस्ट कितना बड़ा है, वापस से मैं नया ड्राइंग बनाती हूँ. ये सरफेस, ये क्रस्ट. तो अगर आप अर्थ को डिग करके नीचे तक जाते हो तो ये डिस्टेंस होगा 35 किलोमीटर्स. मीन्स इफ यू डिग द अर्थ एंड गो इनसाइड तो 35 किलोमीटर्स तक होगा हमारा क्रस्ट. और आफ्टर 35 किलोमीटर्स द सेकेंड लेयर दैट इज द मेंटल स्टार्स, जिसको अभी हमें याद नहीं रखना है, वो बाद में करेंगे. ओके, और ये जो हमारा एरिया है 35 किलोमीटर्स का, यहाँ पर यू कैन फाइंड लॉट ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम. आपको पता होगा साइंस में आप मेटल्स लर्न करते हो कि नहीं? यस, तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा आपको मिलेगा ये एरिया में, और इसीलिए इस एरिया को बोला है Cl, SiAl. Si for silicon, Al for aluminium. Am I very clear, all of you? Okay. Now देखो, ये सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये हो गया हमारा
क्रस्ट। तो हमें बोला गया है कि दिस एरिया इज 35 किलोमीटर्स। ओके, बट व्हाट इफ दिस थोड़ा सा एरिया ऐसा है जहाँ पर पानी है, तो पानी को आप डिग कर सकते हो कभी? पानी को खोद सकते हो? नो। बट आपको पता है कि कोई भी वाटर बॉडी है उसका कहीं ना कहीं पर फ्लोर तो आता ही है। एक जगह आता है जहां पर द वाटर गेट्स कंप्लीटेड और वापस वहां से भी लैंड शुरू होता है। ये तो आपको पता है ना, ऑल ऑफ यू। यस। तो अगर कहीं पर वाटर है तो वो वाटर खत्म होने के बाद जहां से लैंड एरिया शुरू होता है वहां से आप डिगिंग चालू करोगे तो आपका क्रस्ट हो जाएगा छोटा सा। ठीक है, देखो यहां से लैंड में से आप डिग करोगे तो 35 किलोमीटर्स होगा, लेकिन वाटर में से करोगे तो इट कैन ओनली बी 4 to 5 किलोमीटर्स। तो अगर मैं बोलती हूँ दैट व्हेन यू डिग द अर्थ देन आफ्टर 35 किलोमीटर्स द क्रस्ट, अप टू 35 किलोमीटर्स द क्रस्ट इज देयर, तो हर एक जगह पर 35 किलोमीटर्स नहीं होता। समझ में आ रहा है? अगर वाटर बॉडी है तो उसको पहले आप वाटर में अंदर तक डूब जाओ, फिर लैंड शुरू होता है उसको डिग करो तो 5 किलोमीटर्स तक ही होगा। ओके, फिर उसका रिवर्स कर दो कि यहाँ लैंड के बदले माउंटेन है, तो इसको तो आपको यहां से डिग करना पड़ेगा तो यहां तक आएगा, तो दिस कैन बी अप टू 80 किलोमीटर्स। समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? यस। तो अगर ये हमारा लैंड है तो यहाँ पर माउंटेन भी है, फ्लैट लैंड भी है और वाटर भी है। तो क्रस्ट कहाँ तक है? यहाँ तक, टिल हियर इट इज क्रस्ट। तो माउंटेन में से आप डिग करोगे तो इट कैन बी 70 to 80 किलोमीटर्स। लैंड में से करोगे तो इट कैन बी ओनली 35 to 40 किलोमीटर्स, और वाटर में से डिग करोगे तो इट विल बी ओनली 4 to 5 किलोमीटर्स। ओके, एंड दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द क्रस्ट एंड्स एंड द मेंटल स्टार्ट्स। और ये जितना भी एरिया है क्रस्ट का एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये एक्चुअली इतना बड़ा है ये एरिया, ये सभी जगह पर आपको सबसे ज्यादा मिलेगा सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं Cl। एम आई वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू? यस, समझ में आ गया? चलो, now let's see the second paragraph. The oceanic crust mainly contains silica and magnesium. It is therefore called saima, that is silica and magnesium. सीमा नहीं बोलेंगे, साइमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइमा। चलो, तो ये हो गया हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ पर हम लोग रहते हैं। ये हो गया हमारा क्रस्ट जो कि है कितने किलोमीटर्स? यस, वेरी गुड, 35 किलोमीटर्स। लेकिन यहाँ पर वापस आ गया पानी, तो ये होगा कितने किलोमीटर्स? 4 to 5 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये 35 किलोमीटर्स डिग करोगे तो आपको मिलेगा सिलिका एंड एल्यूमिनियम, लेकिन ये 5 किलोमीटर्स में आपको ज्यादातर मिलेगा सिलिका एंड मैग्नीशियम। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और इसको बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट। समझ में आ रहा है? ओके, सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैज लॉट ऑफ Cl and oceanic crust has lot of साइमा। साइमा एंड मैग्नीशियम है, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम जिसको बोलते हैं साइमा। Si फॉर सिलिकॉन, Ma फॉर मैग्नीशियम। समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? Okay. Now we have been given a small box of information. Let us see what is this information given.
Only 0.5% of the size of the earth is a solid crust, 16% mantle and 83% is core. The radius of the earth is 6371 kilometers. Now अगर ये हमारा अर्थ है, ठीक है, देखो कितना ब्यूटीफुल अर्थ बनाया मैंने. ये है हमारा क्रस्ट, फिर ये है हमारा मेंटल जो कि अभी बाद में लर्न करेंगे, और उसके अंदर है कोर. तो ये जो एरिया है सरफेस से लेकर क्रस्ट तक, इट इज ओनली 0.5% ऑफ द टोटल इंटीरियर. ये पूरा जो अर्थ का इंटीरियर है यहां से लेकर यहां तक, उसमें से क्रस्ट ऑक्यूपाइज ओनली 0.5%, मेंटल ऑक्यूपाइज 16%, एंड सबसे बड़ा है कोर विच कंज्यूम्स 83% ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. एंड रेडियस, डू यू नो व्हाट इज रेडियस? मैथ्स में रेडियस लर्न किया है आपने? अगर ये सर्कल है और ये सेंटर है तो सेंटर से लेकर सरफेस तक का जो पार्ट है उसको रेडियस बोलते हैं. ये तो लर्न किया है ना, राइट? तो सपोज इफ दिस इज द सेंटर, तो सेंटर से लेकर सरफेस तक इतना एरिया अगर आप ट्रैवल करोगे तो it totals up to 6371 किलोमीटर्स. अभी किलोमीटर्स का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. फ्रॉम राजकोट टू अहमदाबाद इज 200 किलोमीटर्स, राइट? राजकोट टू अहमदाबाद. लेकिन राजकोट से आपको डिग करके अहमदाबाद अंदर नहीं जाना है, हम लोग रोड के ऊपर ट्रैवल करते हैं. समझ में आ रही है बात? तो राजकोट से अहमदाबाद 200 किलोमीटर जाने के लिए अप्रोक्सीमेटली इट टेक्स 4 आवर्स, 200 किलोमीटर्स. जबकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मोर देन 6000 किलोमीटर्स. तो आप इमेजिन कर सकते हो 200 और 6000 कितना फर्क पड़ता है. इमेजिन कर सकते हो ना, ठीक है? तो अगर ये हमारा अर्थ है तो सिर्फ इतना डिस्टेंस है 6371. तो अर्थ तो इस तरफ भी है आधा, तो ये भी होगा 6371. तो अगर आप सरफेस से लेकर सेंटर तक जाओगे या ऊपर नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक ट्रैवल करोगे तो आपको कितना किलोमीटर, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? मोर देन 12,000 किलोमीटर्स. मोर देन, ये तो मैं अप्रोक्सीमेटली लिख रहे हैं, है ना? इट विल बी मोर देन 12,000 किलोमीटर्स. सो इससे आपको पता चल सकता है कि अर्थ की साइज कितनी है. समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द सेकेंड लेयर. अब क्रस्ट के नीचे जाएंगे, ठीक है? ये है हमारा सरफेस जहां पर हम लोग रहते हैं. उसके नीचे कौन सा लेयर आएगा? crust. And up to how many kilometers is the crust deep? 35 kilometers. Okay? अब 35 के बाद अगर आप 36 किलोमीटर में जाओगे तो हो जाएगा हमारा दूसरा लेयर स्टार्ट, जिसको हम बोलते हैं मेंटल. वो मेंटल है, वो कितना अंदर तक जाता है? 2900 किलोमीटर्स. क्रस्ट तो सिर्फ 35 किलोमीटर्स का था, और मेंटल कितना डीप है? 2900 किलोमीटर्स. तो इससे आपको पता चल सकता है ना कि क्रस्ट छोटा है, मेंटल बहुत बड़ा है. ओके, यस. सॉरी, वन से यहां से दिस मच इज 2900. ओके, लेकिन 35 तक क्रस्ट, 36 से मेंटल. समझ में आ रहा है? चलिए, ओके फाइन. चलो रीड. यस, एनी डाउट्स?
अगर हम अर्थ को डिग करके अंदर अंदर जाते भी हैं तो वी कैन नॉट गो मैक्सिमम अप टू 12 किलोमीटर। इफ दिस इज सरफेस, यहाँ पर हम लोग रहते हैं, तो आप सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही जा सकते हो, उससे ज्यादा इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्योंकि जैसे जैसे आप अंदर जाते हो द टेम्परेचर इंक्रीज इज वेरी हाई, बहुत गर्मी होती है। और आपको पता है कि हाई टेम्परेचर में मेटल्स स्टार्ट मेल्टिंग, मेटल्स जो है वो मेल्ट होने लगते हैं, राइट। तो अगर आप कोई व्हीकल भी लेकर अंदर जाते हो तो व्हीकल्स आर मेड ऑफ मेटल, तो वो भी मेल्ट होने लगता है। So it is not at all possible for human beings to travel more than 12। चलो अभी बहुत सारे इन्वेंशंस हो चुके हैं, डिस्कवरीज हो चुके हैं,